हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो जो है, हम 2-3 दिन से वीडियो जो है वो देख रहे हैं, मोस्टली साइंस फेस्ट के बारे में, जो साइंस के फैक्ट्स हैं टेक्नोलॉजीज पे। कल हमने एक वीडियो देखी थी आई थिंक, जिसमें उन्होंने कहा जो मजदूर लोग थे उनके लिए हाथ का बनाया था और बाजू तक का ना। तो आज है कि जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, जो नबीना अफराद हैं, उनके लिए उन्होंने ग्लासेस बनाई गई हैं। तो वो आज देखते हैं कि उस ग्लासेस का क्या काम है, कैसे उन्होंने बनाई गई हैं। तो आइए पहले देखते हैं वीडियो, फिर इसके बारे में करते हैं बात। এর মাধ্যমে আমরা অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য একটি নতুন উপায় তৈরি করেছি সাধারণ মানুষদের মতো জীবনযাপন করার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে। আমি যদি এখানে সুইচটিকে অন করি তাহলে আমার এই সেন্সরের 1 ফিট দূরত্বে থাকা যে কোনো অবজেক্টকে ডিটেক্ট করতে পারবে এবং এখানে সিগন্যাল দিবে, যার কারণে আমি অন্ধ ব্যক্তিটি বুঝতে পারবে যে তার সামনে কোনো অবজেক্ট আছে কিনা, সেটি তার দিকে আসছে কিনা এবং কত দ্রুত আসছে সেটাও কিন্তু সে সেটি ডিটেক্ট করতে পারবে। আসলে মেইনলি আমরা জানি যে যারা জন্মগতভাবে অন্ধ তারা কিন্তু আলাদা একটা ফিল করার অ্যাবিলিটি রাখে যে তাদের সামনে কোনো কিছু আছে কিনা। ঝুঁকি বলতে এখন যদি এই মডেলটিকে ইউজ করে কেউ তাহলে তার কানের সমস্যা হতে পারে, কিন্তু আমরা আগে বলেছি যে এটা খুব আপগ্রেডেবল এবং মডিফাইয়ের প্রয়োজন। আমরা জাস্ট একটা মডেল আপনাদের কাছে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা এখন সামনে যে প্রজেক্টটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে স্মার্ট গ্লাস। এর মাধ্যমে আমরা অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য একটি নতুন উপায় তৈরি করেছি সাধারণ মানুষদের মতো জীবনযাপন করার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে। আমি সামিহা শরীফ। আমি তাজমিম রহমান। আমরা হচ্ছে ক্লাস 9 এসএসসি ব্যাচ 2026 মধুশ্রী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসেছি। তো আপনারা যেই প্রজেক্টটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আল্ট্রাসনিক সেন্সর বেসড একটি স্মার্ট গ্লাস, যেখানে আমরা একটি আল্ট্রাসনিক সেন্সর ব্যবহার করেছি, আরডিনো ন্যানো ব্যবহার করেছি, 3.7 ভোল্টেজের একটি ব্যাটারি, একটি সুইচ এবং বাজার ইউজ করেছি। এরপর এগুলোকে আমরা কানেক্ট করেছি জাম্পার ওয়্যারের মাধ্যমে এবং কোডিংয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি। এখন কথা হচ্ছে যে আমার এই জিনিসটি কিভাবে কাজ করে। আমি যদি এখানে সুইচটিকে অন করি তাহলে আমার এই সেন্সরের 1 ফিট দূরত্বে থাকা যে কোনো অবজেক্টকে ডিটেক্ট করতে পারবে এবং এখানে সিগন্যাল দিবে। পাশাপাশি অবজেক্টটা যদি তার দিকে সামনের দিকে আসতে থাকে এই সিগন্যালটি তখন আরও জোরে জোরে বাজতে থাকবে, যার কারণে আমি অন্ধ ব্যক্তিটি বুঝতে পারবে যে তার সামনে কোনো অবজেক্ট আছে কিনা, সেটি তার দিকে আসছে কিনা এবং কত দ্রুত আসছে সেটাও কিন্তু সে সেটি ডিটেক্ট করতে পারবে। এভাবে করে সেই অন্ধ ব্যক্তির মুভমেন্টে এই জিনিসটা অনেক বেশি ইউজফুল হবে। আসলে মেইনলি আমরা জানি যে যারা জন্মগতভাবে অন্ধ তারা কিন্তু আলাদা একটা ফিল করার অ্যাবিলিটি রাখে যে তাদের সামনে কোনো কিছু আছে কিনা, কিন্তু যারা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে যে দৃষ্টিশক্তি হারায়, বিশেষ করে আমরা দেখেছি যে এই জুলাইয়ের সময় অনেক স্টুডেন্ট, অনেক মানুষ কিন্তু তাদের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে, যা একদমই এক্সপেক্টেড না। তো তাদের হেল্প করার জন্য মেইনলি তো তারা তো আর সেই জন্মগত অন্ধ যারা তাদের মতো এক্সট্রা অ্যাবিলিটি রাখছে না, যা তাদের নর্মাল মুভমেন্টে অনেক বেশি প্রবলেম ক্রিয়েট করছে, কিংবা তাদের ওই লাইফ লিডেও অভ্যস্ত হতে হলেও অনেক বেশি সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে, 5 বছর 6 বছর সময় লাগছে তাদেরকে। তো ওই টাইমটাতে তাদেরকে হেল্প করার জন্য আমাদের এই প্রজেক্টটি অনেক বেশি হেল্পফুল হতে পারে। এটি অনেক বেশি মডিফাই এবং আপগ্রেড করার প্রয়োজন। যে এখন পর্যন্ত যারা দেখতে এসেছেন তারা মোটামুটি জিনিসটিকে পছন্দই করেছেন এবং তাদের থেকে আমরা কমেন্ট রাখারও ব্যবস্থা রেখেছি, যার কারণে তাদের এই কমেন্টগুলো আমাদেরকে আরও ইন্সপায়ার করছে। পাশাপাশি আরও এখানে অনেক স্যার ডক্টররা এসেছেন যারা আমাদেরকে এই বিষয় সম্পর্কে আরও অনেক নলেজ দিচ্ছে, যা আমাদের ফিউচার ক্যারিয়ারে অনেক বেশি কন্ট্রিবিউশন রাখবে। পাশাপাশি আমাদেরকে আরও বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের কী কী কমতি আছে, আমাদের আরও কী কী ডেভেলপ করা প্রয়োজন, যার কারণে আমার মনে হয় যে এই প্রজেক্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে তাদের কমেন্টগুলো, তাদের রেসপন্সগুলো খুব বেশি কন্ট্রিবিউশন রাখছে। এখানে আমাদের যে বাজারটি ইউজ করা হয়েছে এটা কিন্তু খুব ইরিটেটিং একটা সাউন্ড দিচ্ছে। তো এটা যদি মডিফাই করে আমরা হচ্ছে ওয়েভ ইউজ করতে পারি, যেটা আমাদের রেঞ্জের মধ্যে থাকবে, মানে যেটা আমাদের ব্রেনের জন্য আর কি ক্ষতিকর হবে না, সেটাও যদি আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে এটা কিন্তু আমাদের ব্রেনের জন্য অত বেশি ইফেক্টিভ হবে না। ঝুঁকি বলতে এখন যদি এই মডেলটিকে ইউজ করে কেউ তাহলে তার কানের সমস্যা হতে পারে, কিন্তু আমরা আগে বলেছি যে এটা খুব আপগ্রেডেবল এবং মডিফাইয়ের প্রয়োজন। আমরা জাস্ট একটা মডেল আপনাদের কাছে দেখানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু এটা যখন মডিফাই করা হবে তখন কিন্তু ওই সাউন্ডটাকে আমরা মাইক্রোফোনের মাধ্যমে এমন একটা ওয়েভে আনবো যেটা তার ব্রেন সহ্য করতে পারবে এবং তার কানের রেঞ্জের মধ্যে থাকবে, যেটা তার জন্য অত বেশি ক্ষতিকর হবে না। তো তখন সেক্ষেত্রে ঝুঁকিটা কিন্তু অনেকখানি কমে আসবে। मतलब बांग्लादेश यहाँ से पता लग रहा है कि टेक्नोलॉजीज़ में किसी
तरह किसी से कम नहीं रहा। हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ों में बांग्लादेश जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है ना। अच्छा, अगर आप स्टडी की बात करते हैं तो नो डाउट है कि स्टडी को बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। टैलेंट भी है। हम आते हैं ना वीडियो की तरफ, तो ये मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ। होता क्या है कि सालाना ना 1 ईयर, 1 साल में एक बार होता है, स्कूल्स फेस्टिवल होता है, शो होता है, एक प्रोग्राम होता है। जैसे कि हमारे भी यहाँ पे किया जाता है, कोई सिटी के अंदर कोई जो ख़ास जगह है बड़ी सी या ग्राउंड वगैरह को जो है तो बुक किया जाता है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उस सिटी के सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स। अपने अपनी वो जगह पे अपने अपने कैंप्स लगाते हैं और वो अपने अपने प्रैक्टिकली, यानी कि जो चीज़ उन्होंने मेड की है, बहुत सारा ऐसा होता है जो किसानी के लिए, किसान के ऊपर डिफरेंट थिंग्स के ऊपर जो कि उन्होंने काम किया होता है, और वो लेके पब्लिक के सामने आते हैं। अगर किसी को वो पसंद आता है तो वो ऑन द स्पॉट उसको बाय कर सकते हैं। और जैसे कि ये स्टूडेंट्स हमें समझा रहे हैं, ऐसा मैं भी कर चुका हूँ, तो उनके पास जाओ ना तो वो प्रॉपरली आपको पूरी एक थीम के साथ जो कि उसका एग्जाम्पल देते हैं, जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो ऑन द स्पॉट बाय भी कर सकता है। तो ये सेम वैसा ही फेस्टिवल हो रहा है, और जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है स्टूडेंट्स की, ठीक है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स, बच्ची का, अपनी बहन का, कमाल है। अच्छा, मैं वीडियो देख रहा था, इसमें उन्होंने बताया गया है कि अपना जो लोग देख नहीं ना सकते, हाँ, उनके लिए इन्होंने ग्लासेस तैयार की हैं, ठीक है, Awesome. और ग्लासेस के साथ उन्होंने सेंसर लगाए हैं, सेंसर लगा कि आपकी तरफ कोई भी खतरे वाली चीज आएगी ना तो आपको सेंसर जो ऑब्जर्व कर देगा कि आपको इस चीज से चीज आ रही है और या ये नहीं कितनी स्पीड से है, ठीक है, और ये क्या चीज है, इसमें वो आपको थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकती है। लेकिन वो इसको अपना ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए या ज्यादा बेहतर करने के लिए वो कहते हैं हमें 5 से 6 साल चाहिए, ठीक है, जिसमें हम मतलब के नबीने आदमी भी उसके दिमाग के साथ अटैच हो जाएंगी कि वो हर चीज को ऑब्जर्व कर सकेगा कि मेरी उसके सेंसर्स जो है उसके दिमाग से कंट्रोल होंगे ना। जब हम वीडियो देख रहे हैं ना, वो अपना एक समझ लो डेमो दिया है कि कुछ टाइम में कुछ ऐसा वो कर देंगे कि अभी तो इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ 4, 5, 6 साल बाद सेम एक ऐसे होगा कि जैसे हम एक सिंपल क्लासेस लगा दें, सेम वो आपको क्लासेस लगाना पड़ेगा, आपके माइंड के साथ वो अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपको सेंसर की उम्र के जरिए अभी इसमें यही हो सकता है कि अगर ये लगाते हैं, वो बच्चे स्टूडेंट है कितने छोटे और कितने आगे, उन्होंने टैलेंट की बात है ना। बांग्लादेशी जो वुमेन है ना, कहते हैं कि स्पेशली वो लहदा उनकी फैक्ट्री है जहाँ पे वो काम करती हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, बेंदर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के जरिए औरतों को पैसे दिए जाते हैं, वो खुद काम करती हैं। बेसिकली उधर लोग जो है ना एफर्ट करते हैं, स्ट्रगल पर्सन लोग हैं, ठीक है, वो हमेशा किसी भी काम को, अक्सर मैं बोलता हूँ कि वो छोटा नहीं समझते, ठीक है, तो इस करके, और मेरा ख्याल है कि जो बंदा बिल्कुल भी नहीं देख सकता उसके लिए ये चीज़ भी बेटर है, ये चीज़ ऑब्जर्व कर सके कि यार मेरी तरफ से मुझे भी किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से खतरा है, हाँ, तो वो उनको पता तो लग जाएगा, अलर्ट तो होगा ना, मतलब वो क्लास में लगा लेगा तो उससे जो किसी चीज़ से टकराता है उसका खतरा जो है ना वो कम हो जाएगा। डिफरेंट वेव्स हो सकती है ना, मतलब डिफरेंट तरह की, कोई गाड़ी है या कोई भी चीज़ है, ऑब्जर्व हो जाना बहुत बड़ी बात है। असल जो है ना, देखें जो ब्लाइंड पीपल है ना, उनके लिए सारी दुनिया ब्लैक ही है, उन्हें नहीं पता है आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इस ऐनक का मकसद क्या होगा कि वो एक क्या कहते हैं इशारा या एक सिग्नल दे देगा कि इतने समय, इतनी फीट या इतने दूर आपके पास कोई डेंजर या खतरा या कोई चीज आपकी तरफ। अच्छा है, मैं इसमें एक चीज और सोच रहा हूँ, जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, हाँ। पहले तो बाइक्स की आवाज होती थी, इलेक्ट्रिक बाइक की तो बाइक की आवाज ही नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। तो जो बिहाइंड लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज होगी कि कोई चीज पास से गुजरने लगे तो उनको कम से कम अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट हो बिल्कुल ऐसे। ये थी गाइस आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।